मैंडेटरी है ना। हेल्थ सेंटर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल यूनिवर्सिटी रहता है, एक थेरेपिस्ट रहता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, तो 3-4 फैकल्टीज मैंडेटरी। रोज अब आ जाओ बच्चों, तुम लोग उधर साइड में हो। आप हाँ, हम लोग सभी लोग चंद कक्षा That's what I told her कि पहले बताओ मैं लेके आ जाऊँ। आप सोचिए मैं आशियाना से आप आगे भी हैं जी, बाकी काफी लोगों ने भी चेंज किया तो है डॉक्टर प्रज्ञान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ज्योत्सना पांडे, ज्योत्सना शुक्ला। सुखमनी की क्लास चल रही है। हाँ, सुखमनी की कुछ ऑनलाइन क्लास To all present in the auditorium, our eminent dignitaries, Neha Anand ma'am, who is the director and founder and a psychotherapist in Bodhi Tree Mental Health Institute, Miss Nandini Sharma ma'am, who is also the co-founder of Atman and an assistant professor in the Department of Clinical Psychology in Amity University. Our respected principal ma'am, Professor Manjula Upadhyay, our respected seniors and juniors of Nabil family and dear students. I, Dr. Sonal Agarwal, feel delighted and eager to welcome you all in today's symposium on acquiring symposium to celebrate the occasion of World Mental Health Day, which is observed every year on the 10th of October. The theme of today's symposium is making the healthcare services accessible to everyone. Let us start today's program with the auspicious ceremony of lighting of the lamp, a lamp of knowledge and wisdom. I request our guests and principal ma'am and senior colleagues to please come forward and light the lamp.
dignitaries and principal ma'am with badges. Our students have made them, their handmade badges to celebrate World Mental Health Day. Director of Bodhi Tree and Nandini Sharma ma'am, who's the assistant, and our professor principal Manjula Upadhyay ma'am to kindly grace the dais. Ma'am, please. Thank you. And memento. Can we have a round of applause? Ma'am. Take. Gaganpreet Kaur to kindly honor Miss Nandini Sharma with planters and memento. Ma'am. Respected principal ma'am with planters. Yet, for many, mental health is often the most misunderstood and ignored aspect of health. The United Nations recognizes mental health as a universal human right. It emphasizes that everyone, everywhere, has the right to attain the highest form of mental well-being. Today's symposium aligns beautifully with this global vision. It calls upon us to spread awareness, destigmatize the talk surrounding mental health, and to make mental health services accessible to all those who need it. Now, I request Dr. Sukanya Tiwari to kindly introduce our first special speaker of the day, Ms. Nandini Sharma. I, Sukanya Tiwari, want to welcome our distinguished guests, esteemed colleagues, and honored professors and students. It's my pleasure to welcome our exceptional guest speaker, Ms. Nandini Sharma ma'am. I am going to give a brief introduction of Ms. Nandini Sharma ma'am. Ms. Nandini Sharma is a clinical psychologist licensed by Rehabilitation Council of India. At present, she is working as Assistant Professor in Clinical Psychology at Department of Clinical Psychology, Amity Institute of Behavioral and Allied Sciences, Amity University, Lucknow. She pursued her MPhil from Amity University, Lucknow in 2017 and 19. She is also the co-founder of Atman Mind Wellness Center, Lucknow, established in the year 2019 with a vision deeply rooted in ethical and evidence-based practices and a mission to make mental health care services accessible to everyone. Striving continually for the awareness, acceptance and advocacy of mental health needs, she has edited a book titled COVID-19 Biopsychosocial Perspectives in the year 2020, and her research articles have been published in reputed national journals. She is editorial board member of Journal of Advanced Research in Science and Social Science. She has taken keen interest in academics, psychotherapy, group sessions, public awareness campaigns, and research work. Her areas of interest in research include mental health of a special population, LGBT, children with special needs, etc., clinical population adolescents, and community mental health. She has experience in personal counseling, interactive sessions, and have been invited as guest speaker in seminars, webinars, radio talks, and social media sessions. She has also been an active contributor in various community mental health initiatives and
social awareness campaigns and has supported them in the best of her capacity with psychosocial, psychological well-being programs. An avid learner, she is always looking for opportunities to provide support with her skills and learning, participate with new age programs and keep polishing her professional knowledge. Please give a huge round of applause for Ms. Nandini. Thank you. First of all, thank you so much for such a warm welcome and for extending this invitation to me. I have not prepared a PPT as such because I wanted to interact with the students present here. So, firstly, I would want to know, are all of you students of graduation in psychology? Or do you also science also? Okay. Okay, we have B.Ed, science and psychology students, right? So, I would want to keep it interactive, so we will also have some discussions and question answers in between, right? So, to begin with, I want to know from you all, what is your basic understanding of psychology or mental health? Today we are talking about mental health and tomorrow is World Mental Health Awareness Day. So what is your basic understanding of mental health? Are we comfortable in English or do you want me to have a bilingual English Hindi? ठीक है, mix. तो मेंटल हेल्थ है मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? अच्छा, हम हेल्थ से क्या समझते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हेल्थ? Without any disease, fitness, राइट, well-being. एब्सोल्युटली राइट मैम, थैंक यू वेरी मच. मैम बता रही है बट स्टूडेंट्स नहीं बता रहे हैं. तो हेल्थ तो हम सब ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, राइट? सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल and spiritual well-being and not merely the absence of an illness. मतलब कि शरीर में बीमारी का ना होना is not equivalent to health या स्वास्थ्य. बीमारी ना होने के साथ साथ हमारे अंदर well-being, positivity, resilience, एक क्षमता होनी चाहिए to deal with the problems or the stresses that is occurring in our life, right? So that is health. Now when do we say that we are physically healthy? कोई नहीं बोलेगा. See, I am a teacher, so I would want the students to respond. नहीं तो अपने यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ भी हम एक एक करके खड़ा करके पूछेंगे. What do you understand by physical health, or when do we say that I am physically healthy? जब हमें कोई बीमारी ना हो और बीमारी मेंटली वीक नहीं होगी, हम हाइपरटेंशन ले रहे हो और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो. अगर हम एक साइड हमें कोई बीमारी नहीं है और दूसरे साइड हम डिप्रेस या हम परेशान रहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कम्प्लीटली हेल्दी हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य हम तब बोलते हैं जब हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, थकावट कम है, हम अपनी डेली रूटीन या दिनचर्या ठीक से परफॉर्म कर पा रहे हैं, हमारा सोना उठना खाना पीना सब समय से हो पा रहा है. हर इंसान कभी न कभी बीमार पड़ता है पर हम उस बीमारी से रिकवर जल्दी कर जाते हैं, तब हम बोलते हैं शारीरिक तरीके से स्वस्थ हैं. अब हम मानसिक स्वास्थ्य की जब बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी एक हिस्सा होता है. मानसिक स्वास्थ्य में किस तरीके के बदलाव आते हैं जब हम बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है? भूख कम लगती है या ज़्यादा लगती है? ऐसा होता है? हाथ उठा के बता सकते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ?
होता है ना? नींद या तो कम आती है या तो बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा होता है, राइट? कभी कभी बहुत इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता कभी कभी, राइट? एंड सबसे ज़्यादा गुस्सा तो शायद पेरेंट्स में निकलता है। अभी इस एज में लगता है कि मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप समझते ही नहीं है कि मैं किस फेज से गुजर रही हूँ। दोस्त पूछते हैं तो भी बताने का मन नहीं करता है। कभी कभी सर दर्द होता है बट समझ नहीं आता क्यों हो रहा है। होता है ऐसा? किसी के हेडेक बहुत होता है, स्टमक एक, मतलब हम सबके ये सिम्टम्स होते हैं और ये बहुत बेसिक सिम्टम्स होते हैं किस चीज़ के, राइट? स्ट्रेस के, स्ट्रेस तनाव के सिम्टम्स होते हैं। सो बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और वी आर बाउंड टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। हम कभी भी इम्यून नहीं हो सकते और अगर हम इम्यून हो जाएंगे तो we'll be equivalent to God and the idols that we are praising, we are worshipping, right? तो स्ट्रेस तो हम सबको होता है और हम उससे डील भी करते हैं। हमें पता है गुस्सा आ रहा है, हमें ये पता है कि थोड़ी देर आ रहा है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, या हम चिल्ला लेंगे या हम जिस तरीके से निकाल लेंगे तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, या मेरी बात मान ली जाएगी तो मेरा चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। बट अगर ये एक लंबे ड्यूरेशन तक चलता है, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, कंसिस्टेंटली मेरी हंगर डिस्टर्ब्ड है, मेरी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, आई एम फीलिंग इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड, एंग्री, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है और हमें लग रहा है कि अब हम ये डील नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक क्या था, हम अपने लेवल पे हैंडल कर ले रहे हैं, अपने दोस्तों से बात करके, अपने घर वालों से बात करके, गाने सुन के, राइट? वी ऑल ट्राई टू डील विद इट। जब हमें लग रहा है कि अब हमसे डील नहीं हो रहा है और शायद हमें अब थोड़े एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है, देन दैट गोज इनटू कंसर्न्स ऑफ मेंटल हेल्थ। हम तब भी नहीं बोलेंगे कि हमें मेंटल इलनेस है, हम क्या बोलेंगे? हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। नॉट बी mentally ill or may have a psychiatric illness, but हमारी mental health ठीक नहीं है और हमें कुछ support की ज़रूरत है, कुछ lifestyle changes की ज़रूरत है, कुछ अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसा होता है? किसी ने extreme stress experience किया है लाइफ में? If you are comfortable talking about it, किया है? हमने भी किया है, राइट? तो हम जनरली कैसे डील करते हैं? अकेले रहकर, ठीक है? अकेले रहने से कई बार हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती हैं। व्हेन वी सिट विद आवरसेल्फ, वी इंट्रोस्पेक्ट, हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और हमें थोड़ा क्लियरली दिखती है और हमें पता है हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वन साइड। सेकेंड साइड इज़ कई बार कन्फ्यूजन ऑफ थॉट्स भी आती है, क्योंकि हम जब अकेले हैं तो सिर्फ अपने दिमाग से चल रहे हैं, अपने हिसाब से हम एक थ्योरी बना रहे हैं, उसी थ्योरी को हम इंटरप्रेट भी कर रहे हैं और इमेजिनरी टॉक्स भी कर रहे हैं अपने दिमाग में। तो कई बार हम अपनी प्रॉब्लम बढ़ा भी लेते हैं। उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम बात करने की कोशिश करते हैं, हम पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश कर सकते हैं, किसी फ्रेंड का, किसी एडल्ट का, मे बी हमारे कोई बड़े भाई बहन हैं या हमारी फैमिली के कोई भी मेम्बर है जिससे हम सपोर्ट फील करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे। हमारे कोई टीचर हो सकते हैं कॉलेज में, राइट? सो वी कैन टॉक अबाउट इट। हमें एक नज़रिया मिलता है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है जो हमें समझने में हेल्प करता है कि शायद हम गलत हैं या शायद हम सही हैं। सो दैट इज़ वन वे। और क्या कर सकते हैं? कि हम एक तरीके से ना साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ इफ़ आई एम डीलिंग विद स्ट्रेस या आई एम एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस,
तो फर्स्ट हैंड हमें करना क्या चाहिए? हम अगर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और हमें लोगों को बताना है कि क्या करना है, तो बिफोर दैट आई शुड बी अवेयर कि हमें क्या करना चाहिए। और ये समझने के लिए हर किसी के पास एक साइकोलॉजी की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। तो हम और क्या कर सकते हैं? मैम, हम जो नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं उसे पॉजिटिव वे में चैनलाइज बात नहीं भी कर सकते, तो जैसे जो हमारी हॉबीज़ हैं उन्हें करें ताकि हमारे जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो सकें। वेरी बिहेवियर को, इमोशंस को एक मैल अडेप्टिव से अडेप्टिव तरफ लाना है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लाना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चैनलाइजेशन करना है। कैसे कर सकते हैं? जैसे इन्होंने बोला कि हम अपनी हॉबीज़ फॉलो कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम अपनी डेली रूटीन में कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड करें जिसको करने में हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, ठीक है? अब वो चाहे बैठ के बिग बॉस देखना ही क्यों ना हो, ठीक है? बट एनीथिंग दैट मेक्स मी रिलीज द पेंट अप टेंशन, जो मेरे अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है। कई बार हमें डिस्ट्रैक्शन चाहिए होते हैं, डाइवर्जन चाहिए होते हैं, कई बार हमें सोल्यूशन चाहिए होते हैं। सो टू बिगिन विद डिस्ट्रैक्शन वर्क्स वंडरफुली, क्योंकि हर बार हम उस सिचुएशन में नहीं होते कि हम हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालें। मैनी ए टाइम्स डिस्ट्रैक्शन हेल्प्स इन लेटिंग गो। सो वन इज डिस्ट्रैक्शन, लुकिंग फॉर डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि डूइंग समथिंग दैट आई लाइक टू डू एंड इट हेल्प्स मी फील पॉजिटिव एंड हैप्पी। उससे क्या होता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स डिफ्यूज हो जाती हैं, कम हो जाती है, उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, ठीक है? कभी कोई मरीज़ जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहाँ सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? कोई भी इन पेशेंट डिपार्टमेंट में एडमिट होता है तो सबसे पहले फोकस क्या होता है? उनका रूटीन चेंज करना। हॉस्पिटल्स में हमेशा फिक्स टाइम होते हैं उठने का, खाना खाने का, मेडिसिन खाने का, सोने का। फिर उसमें अगर पेशेंट फिजिकली कर सकता है तो वॉक कराई जाती है, फिजियोथेरेपी कराई जाती है अगर वॉक नहीं कर सकते, लंग्स की थेरेपी कराई जाती है ताकि ब्रीदिंग प्रॉपर रहे, कफिंग ज़्यादा ना हो, ठीक है? सो व्हाट आई मीन टू से इज हम बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में ले जाते हैं और यही चीज़ हमें अपनी डेली लाइफ में भी करनी है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, 3 टाइम मील्स लेनी है। सबसे सिंपल सोल्यूशन to have a good mental health, and I'm sure everyone sitting here will agree to it. Good sleep, minimum 8 hours. जो कहते हैं कि 6 घंटे की नींद बहुत होती है, नहीं होती। आप कितने भी एम्बिशियस हो, आपके कितने भी गोल्स हो, प्लीज़ मेक इट अ नेम दैट हमें 8 घंटे की नींद तो पूरी करनी है, एटलीस्ट 5 days a week। प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि डेली हम 8 घंटे सो पा रहे, कीपिंग इन माइंड द करेंट रिक्वायरमेंट्स। सो मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप, 3 meals per day, पॉसिबली हेल्दी मील नहीं है तो जैसे हमने कहा कि हम दिन में एक चीज़ ऐसी करें जिससे हमें खुशी मिले, तो वो कुछ खाना भी हो सकता है। फॉर अ लॉट ऑफ अस फूड इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मेरे लिए भी है। A plate of momos always gives me happiness, and I know it's true for a lot of people. ठीक है? तो अपने पसंद की चीज़ें खाएं, अपने पसंद की चीज़ें करें, बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस। अपना रूम, अपनी जहाँ आप रह रहे हैं, जिस रूम में रहते हैं, जो आपकी कवर्ड है, इसको साफ सुथरा डीक्लटर्ड रखें, ठीक है? जहाँ आप बहुत ज़्यादा क्लस्टर रखेंगे, बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा रखेंगे, वो हमारी थॉट्स पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है। हमारे ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी बढ़ती है, हमारी टायर्डनेस बढ़ती है। आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ की सारी वॉल्स वाइट कलर की हैं। अब अगर एक वॉल हमने ब्लैक कर दी, एक रेड कर दी, एक येलो कर दी, एक ब्राइट पिंक कर दी, और इसमें आपको 24 आवर्स बैठना है, तो आपके दिमाग का क्या स्टेट होगा? ओवर स्टिमुलेशन होगा,
स्टिमुलस समझते हैं? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बचपन में पढ़ा होगा सबने स्कूल में। तो जब हमारे ब्रेन को कोई स्टिमुलेशन मिलता है या हम कोई स्टिमुलस देखते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो जब हमें इतने सारे पॉप ऑफ कलर्स मिल रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ओवर स्टिमुलेशन होता है। ओवर स्टिमुलेशन होता है तो हमारे अग्रेसिव रिस्पॉन्स आता है। कहने का मतलब हमें अपने दिमाग को कम से कम स्टिमुलस देना है। एग्जाम्पल देते हैं, इंस्टाग्राम कौन कौन यूज़ करता है? हम भी करते हैं। रील्स कौन कौन देखता है? सब देखते हैं। और इवन यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं बहुत लोग, राइट? तो क्या अब आप लोग बैठ के 30 मिनट के कंटिन्यूस वीडियोस, एक अगर वीडियो आती है 30 मिनट की, क्या आप एक फ्लो में बैठ के देख पाते हैं? स्किप करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, राइट? पहले तो ऐसे नहीं होता था। 5 ईयर डाउन द लाइन्स नहीं होता था। हम आराम से बैठ के 30 मिनट्स का वीडियो भी देखते थे, टीवी देखते थे, तो टीवी में ऐड आता था तो ऐड भी देखते थे। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे। हम कोई मूवी देखने गए थे लास्ट टाइम, जैसे ही गाना आया ऑटोमेटिकली मेरा हाथ ऐसे हो गया थिएटर में। और ये बहुत लोग के साथ होता है, हम ऑटोमेटिकली उसको फॉरवर्ड करने आगे बढ़ जाते हैं। बट थिएटर में हम कर नहीं सकते ना, मूवी थिएटर में। तो ये क्या हो रहा है कि हमारे दिमाग की आदत हो रही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फटाफट जल्दी जल्दी। ओवर स्टिमुलेशन की जो बात कर रहे हैं ना, तो हमें एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो हमें अच्छा भी फील करा रही है, बट हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें तुरंत चेंजेस चाहिए, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉचिंग रील्स, अभी हमने देखी हमें मेकअप ट्यूटोरियल आया, ठीक, 30 सेकेंड्स की रील, हमने उसको स्क्रॉल किया, उसके इमीडिएटली बाद आया 5 प्लेसेस टू ट्रैवल बिफोर योर 30। देख लिया हमने फिर 30 सेकेंड्स की हो रही, फिर हमने उसको स्क्रॉल किया, फिर एक रेसिपी आ गई। तो सबके साथ ऐसा ही होता है ना, मेरे साथ तो यही होता है। फिर उसको स्क्रॉल किया हमने, फिर कोई एक्सरसाइज की रील आ गई 30 सेकेंड्स की। 2 मिनट्स में हमने 4 डिफरेंट तरीके की रील्स देख ली, 4 तरीके की इंफॉर्मेशन ले ली। तो क्या हमारा दिमाग ट्रेन है इतनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए? सोचो आपकी क्लासेस हैं और आपके अलग अलग पीरियड्स होते हैं, और आपको एक ही पीरियड में सारे टीचर आके 5-5, 10-10 मिनट सब पढ़ा के चले जाएं। टीचर भी बहुत खुश होते हैं, दोनों तरफ से है। बच्चा किसी को भी समझ आएगा, दिमाग में तो कुछ जाएगा ना। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फ्राइंग आवर ब्रेन सेल्स, ठीक है? सो एंड वी ऑल आर मैच्योर एनफ। अब हम इतने बड़े हो गए, हमें समझ आ रहा है कि इसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग में क्या पड़ रहा है। हमारा टेंशन कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, हमारा एग्रेशन बढ़ रहा है, हमारा दूसरों से बात करने का मन नहीं करता क्योंकि हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट? सो व्हेन वी आर सेइंग दैट वी हैव टू ब्रिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, दिस इज वन ऑफ द मेजर लाइफस्टाइल चेंज दैट वी नीड टू ब्रिंग। हम फ़ोन यूज़ करना बंद नहीं कर सकते, हमें ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज नॉलेज, बट हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। हम कितनी रील्स देख रहे हैं, हम कितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? हम उस पर कंट्रोल लगा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं। हो सकता है, ट्राई करेंगे, पक्का करेंगे कि बोलना है यहाँ पे यस तो बोल दें। So this is one very basic change you need to bring in your life, and फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरे दिमाग पे कम स्ट्रेस पड़ रहा है, मेरा दिमाग कम थक रहा है, और हम ज़्यादा टॉलरेंट बन रहे हैं, पेशेंट बन रहे हैं, ठीक है? तो आप 15 दिन के लिए चेंज ला के देखिए, एंड देन यू फील व्हाट इज द चेंज इन योर द वे योर ब्रेन इज फंक्शनिंग। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज। तो हमने क्या क्या बात करी? हम एक हॉबी इंट्रोड्यूस करेंगे या कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमें बहुत अच्छा फील कराती है ऑन अ डेली बेसिस। सेकेंड, we'll try to follow a routine in our day-to-day life at least 5 days a week। 2 दिन सैटरडे संडे वीकेंड में अपने आप को थोड़ी लिबर्टी देते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी कि हम एक रूटीन फॉलो करें, सोने उठने खाने पीने का। थर्ड इज लिमिटिंग फ़ोन यूसेज, ठीक है? फोर्थ,
इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी, कोई भी एक्सरसाइज, हाफ एन आवर। एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वॉक करिए, कान में ईयरफोन्स लगाइए, सिंपली आप आधे घंटे वॉक करिए, बट वॉकिंग विद द पर्पस ऑफ वॉकिंग। सामान लेने जाना, दैट इज़ डिफरेंट, शॉपिंग करने जाना इज़ डिफरेंट, बट हाफ एन आवर माइंडफुल वॉकिंग, जब हमारा दिमाग ये कह रहा है कि तुम्हें इस वक्त इसी पे फोकस करना है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू इन फीलिंग बेटर, फीलिंग हैप्पियर। ये कर सकते हैं कि ये भी डिफिकल्ट है? कर सकते हैं ना, डांस कर सकते हैं, राइट, अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, डांस कर सकते हैं आप। तो ये बहुत बेसिक 4 चीज़ें हमने बात करी। अब एक कोई सलमान खान की मूवी थी जिसमें उसने कहा था कि आप एक अच्छी चीज़ किसी 3 लोग में पास करो, आई हैवंट वॉच्ड द मूवी, है ना, और वो 3 लोग और 3 लोग में पास करें, राइट। So this is some tips that you have learned today. So now what you have to do? Pass it to 3 people or more people, and then they can pass it to more people. Like I said, ये कुछ rocket science नहीं है, ये daily changes हैं, and it 100% helps in improving mental health. ठीक है? अभी हमारी day to day life की बात हुई, मेरे पास कितना टाइम है? 5 more minutes? Okay. Now, then even after doing all of these things, I feel I still am under stress. I am suffering. I may be feeling sad. बिना किसी रीज़न की मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, मैंने ये सब ट्राई कर लिया, उसके बाद भी बहुत मेजर चेंज नहीं आ रहा है। तो मतलब इन सब के साथ हमें अब मदद की ज़रूरत है, और वो मदद क्या होगी? या तो थेरेपी या तो मेडिसिन, राइट, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन दी सिवेरिटी। तो या तो हम साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे या हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे फॉर थेरेपी, और नीड होगी तो दोनों चीज़ें साथ में करेंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। नाउ कमिंग टू व्हाट आई वाज सपोज टू टॉक, कि थेरेपी में होता क्या है। So, what are the things, or what should we consider while doing therapy or while taking therapy? ऐसी क्यूरियोसिटी है आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चे हो, एंड आई एम श्योर आप लोग में से बहुत सारे लोग आगे जाके साइकोलॉजी में ही करियर बनाना चाहेंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू बिकम अ थेरेपिस्ट इन द फ्यूचर? काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, कौन बनना चाहता है आप में से? और ज़रूरी नहीं कि सब ग्रेजुएशन करके साइकोलॉजिस्ट बने, आप लोग बनना चाहते हैं। सो व्हेन यू सी योरसेल्फ एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप क्या इमेजिन करते हो? एक अच्छा लिस्नर, वेरी गुड। बट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन प्रोफेशन, कि मैं आज से अपना कोर्स कंप्लीट करके दिस इज वेयर आई सी माई सेल्फ। मतलब आपने साइकोलॉजी पढ़ा और आपको आगे जाके साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो आप अपने को कहाँ देखते हो, कि क्या करते हुए देखते हो? कुछ इमेजिनेशन आती होगी दिमाग में? ठीक है, हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, और आपने बोला था बिकमिंग अ गुड लिसनर। तो ये तो रहे हमारे स्किल्स, वेरी वेरी बेसिक स्किल्स। वन इज दैट यू बाय डिफॉल्ट हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, and when I say good human being kind, being helpful, being empathetic, empathy होनी चाहिए। empathy मतलब हम दूसरे की तकलीफ को समझ पा रहे हैं, हम दूसरे को बेचारा नहीं समझ रहे हैं, हम पिटी नहीं दिखा रहे, सिंपैथी नहीं दिखा रहे कि इस बेचारी के साथ देखो क्या हुआ, नहीं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो मुझे अभी इमोशनली कैसा फील होता, मेरा बिहेवियर इस सिचुएशन में क्या होता, या मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती। ये होती है एम्पैथी। तो एम्पैथी सबसे बड़ा स्किल है, क्योंकि जब आपके सामने आपका क्लाइंट या आपका पेशेंट बैठेगा, आपको ये नज़रिया रखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे, राइट। सो एम्पैथी, क्या बोला था आपने? गुड लिसनिंग स्किल्स, यस। So we all have 2 ears and 1 tongue, 1 mouth and tongue, right? So as human beings,
we are supposed to listen more and speak less. Listening is a very important skill. और हमें लगता है कि हम अगर थेरेपिस्ट हैं और हम एक काउंसलिंग सेशन ले रहे हैं तो हम बहुत एम करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशंस दे सकें उनको 40-50 मिनट्स में। सामने वाला जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है हम उसको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकें। नो, हमें सामने वाले को मोस्टली चाहिए होता है कि मैं इनसे अगर बात कर रहा हूँ तो ये सुन ले, मेरी बात समझ ले, क्योंकि वो इंसान वहाँ तक पहुँचा है बिकॉज उसको लग रहा है कि मेरे आसपास के लोग शायद चीज़ें मेरे नज़रिए से नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो एक स्ट्रेंजर पे भरोसा करके पहुँचा है, राइट? सो यस, लिसनिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन इक्वली इम्पॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? हम आपकी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करेंगे। आपने हमसे जो भी शेयर किया ये हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं ना, कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड ने हमें कुछ बताया तो हम उसको अपने तक रखने की कोशिश करते हैं, और नहीं करते तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, रखना चाहिए, गॉसिप नहीं करनी, ठीक है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल कि कोई आप पे भरोसा करके आपके पास आ रहा है, आपको वो बात अपने तक रखनी है। आप शेयर तब करेंगे जब आपको लगे कि हाँ इसको और मदद की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, कोई लीगल इशू हो सकता है। इन दो सर्कमस्टेंसेस हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है? बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताएंगे। एंड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग नॉन जजमेंटल, ठीक है? हमें वहाँ कोर्ट का जज नहीं बन के बैठना है, कोई फैसला नहीं सुनाना है, एज सिंपल एज दैट। जो हमसे बोल रहा है, अगर आपके पास एक मर्डरर भी आता है काउंसलिंग लेने, आपको अपने सामने एक बिल्कुल नॉन जजमेंटल लेंस बनानी पड़ेगी कि इसको थेरेपी की ज़रूरत है, ये मेरा क्लाइंट है और मुझे जो भी करना है इसके सपोर्ट में बातें करनी है। दैट डजंट मीन कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए या वो क्रिमिनल नहीं है, बट हमारा काम है इमोशनली और बिहेवियरली हेल्प करना, ठीक है? तो हम उसके नज़रिए से उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा जजमेंट है, हमारे पर्सनल ओपिनियंस हैं, हमारे पर्सनल इश्यूज़ हैं, हमारा अपना स्ट्रेस है या हमारे साथ कोई तकलीफ चल रही है, वो हम थेरेपी रूम के बाहर छोड़ के आते हैं, ठीक है? नहीं तो हम अपने पेशेंट्स पे रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। अगेन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कुछ बताया कि यार पता है आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई है, मुझे बात पे मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है, मुझे लगता है मुझे माइग्रेन होता है। अब हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे दिया, मेरे साथ तो 4 साल से ऐसा हो रहा है, मेरा तो माइग्रेन ठीक ही नहीं होता जब तक मैं 2 डिस्प्रिन ना ले लूँ या नेक्सडोम ना ले लूँ, और मेरे पेट में भी दर्द हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने उसकी प्रॉब्लम को इनवैलिडेट कर दिया और अपनी प्रॉब्लम बड़ी दिखा दी। करते हैं ना, हम इंसान हैं, ह्यूमन से, हम सबकी टेंडेंसी होती है। कोई हमसे शेयर करता है तो हमें लगता है हम भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं उनसे, तो कई बार हम उनको वो स्पेस नहीं देते हैं, वो स्पेस ले लेते हैं और अपनी दिक्कत बड़ी दिखा दी। ऐसे ही हम अपनी खुशी और अचीवमेंट भी बड़ी दिखा देते हैं। कोई अपनी अचीवमेंट बताता है, फिर हम तुरंत अपनी अचीवमेंट्स बताना शुरू कर देते हैं, ये भी करते हैं ना? सो थेरेपी में वो नहीं करता है, ठीक है? So these are some very basic things that we have to take care while taking therapists. This is specifically for those people who want to pursue counseling as a career in future. And बाकी सब चीज़ें as a human being हम सबको पता होनी चाहिए कि हम कैसे अपना ध्यान रखें और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखें, ठीक है? अभी बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। मान लीजिए आपका जो रूम है, आप उसमें रहते हैं और आप जब उसमें जाते हैं आपको लगता है कि मुझे घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रही है, मैं जब आती हूँ मुझे चिड़चिड़ापन होता है, काश इस कमरे को मैं बड़ा कर सकती, काश इसकी दीवार तोड़ के मैं इसको बड़ा करती तो मुझे सांस लेने में तकलीफ ना होती, राइट? अब यही वॉल है, अगर हम ये सोचें तो हम इसकी दीवार नहीं तोड़ सकते, या तोड़ भी सकते हैं तो वील कॉल समवन, हम लेबर बुलाएंगे, हम तोड़वाएंगे, वो प्रोसेस होगा। बट अगर नहीं तोड़ सकते तो क्या करना है हमें? हम उसमें खिड़की बना सकते हैं,
खिड़की नहीं भी बना सकते तुम क्या कर सकते हैं, लाइट पेंट करवा सकते हैं, वाइट कलर का पेंट या लाइट पेंट, जिससे वो कमरा हमें बड़ा लगे। या हम उसमें शीशे लगवा सकते हैं, शीशे लगवा सकते हैं, शीशे लगाने से कमरा बड़ा लगता है। हम उसमें फर्नीचर ऐसे रख सकते हैं जो मुझे अच्छा लगता हो, अच्छी लाइटिंग लगा सकते हैं, कैंडल रख सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं, मतलब कि अपनी पसंद से हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो जब जब हम उस कमरे में आए मुझे फ्रस्ट्रेशन ना हो, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो, राइट। तो कई बार हमें लगता है कि हम अपने आसपास सब बदल दें, बट चेंज हमें इंटरनली करना पड़ता है, अपने अंदर करना पड़ता है, राइट। तो ये बेसिक सी चीज़ समझिए कि कई बार हम बदलाव खुद में लाते हैं और हमें आसपास चीज़ें बदलती हुई दिखने लगती हैं। गॉट इट? और नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलिए, बट बिफोर आई लीव द पोडियम we'll do a very small and easy breathing exercise again for the purpose कि आप ये जाके आगे और लोगों को भी सिखा सके। तो बस ऐसे ही रिलैक्स होकर बैठिए, थोड़ा सा जैसे बैठे, जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर थाइज एंड जस्ट बी रिलैक्स्ड। हम एक गुलाब का फूल कैसे सूंघते हैं? हाउ डू वी स्मेल अ रोज? प्लीज स्मेल अ रोज। नाउ ब्लो अ कैंडल। स्मेल अ रोज, ब्लो अ कैंडल। इजी है, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ना। सो वील ऑल्सो टीच दिस टू आवर पेरेंट्स टुडे एंड आवर सिबलिंग्स एंड लेट एवरीवन डू इट एटलीस्ट 10 टाइम्स। इसी का एक और वर्जन करते हैं। स्मेल अ रोज, ब्लो अ बलून। स्मेल अ रोज, ब्लो अ बलून। ठीक, तो आई होप ये याद रहेगा। बाकी स्टार्टिंग के 15 मिनट शायद ना याद रहे, बट ये ज़रूर याद रहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच ma'am, for such an engaging and interactive and joyous lecture. You highlighted very important things related to the field of psychology and how we should handle stress. For instance, you highlighted that we should have a psychological first aid kit ready, comprising of important hobbies, that we should cultivate our hobbies, have at least 8 hours of sleep for 5 days in a week, eat very tasty food which we like, for instance momos, and follow a routine. And even though many students over here would feel very lazy doing it, still clean their cupboard and make it organized. A healthy mind is a healthy life, and you emphasize that we have to take internal responsibility and try to change ourselves from within to develop and foster a good mental health. You also suggested that a good psychologist should be empathic, kind, non-judgmental, and maintain confidentiality. Your exercise of breathing like a rose and blowing a balloon will always be remembered by all of us present here. So can we please have a big round of applause? Now I request Dr. Gaganpreet Kaur to kindly introduce our keynote speaker, Neha Anand ma'am. Hello everyone, myself Gaganpreet Kaur. I would like to welcome our keynote speaker and distinguished guest, Ms. Neha Anand ma'am, and all our colleagues sitting here. I'll try to give a brief detail expertise of Ms. Neha Anand ma'am, because she has a lot of things she has done in her career till date. But I would like to share some of them. Ms. Neha Anand ma'am has a long career, as we know that she is a founder and director at Bodhi Tree.
a center for mental health and well-being. She is an expert in psychotherapy. She is a psychological counselor, parent coach, NLP and hypnotherapy master practitioner. She is advanced life coach, social activist. She has been working as for 18 years as a social activist. She is running an NGO named Meri Pehchan Society. She is the chief consultant advisor at the Sexual Harassment Committee at the Sports Authority of India. She has been working with the police training officers, and she has a lot to do. She has done a lot of things, like she is a successful entrepreneur. She has a lot of achievements. She has got so many awards like FICCI Flow Women Achiever Award, Sane Hindustan Award, Women of Substance, Lucknow Ladies Association, Iconic Personality Awards, Women of Excellence, and so many awards she has got till in her career. I would like to invite her on the podium as a keynote speaker with a big round of applause. Thank you so very much. It's always a pleasure to give a talk specifically to women and girls. That is one of my forte since I have been a founder member of Women Powerline 1090, and I can see the tagline, which probably we came up with a lot of brainstorming. Chuppi todo khulkar bolo. Still we are carrying that tagline. I feel so proud of it. But when it comes to mental health, Nandini, have you left something for me? Okay. So my basic question, since Nandini has already given an outline, she's spoken about a lot of tips, techniques, what you should be knowing by now, right? So my basic question goes to all of you. What is the difference between mental health and mental illness? Anybody? Please, yes. Well-being of mind, and mental illness is a person who is suffering from well-being of mind. Brilliant answer. Many times when we talk about mental health, I ask one question. Whatever comes to your mind when I say mental health, they say depression, anxiety, right? Panic attacks, and even bigger names of disorders like schizophrenia. Some people are very fascinated with these words: schizophrenia, paranoia, bipolar, and blah blah. When we talk about mental health, we never say it's mental disorder. And do you think no health can be possible without mental health? Why? देखो ऐसे समझो, आपका घर है, ठीक है? यहाँ पे चलो इसी को लेते हैं एज एन एग्जाम्पल. यहाँ पे लाइट्स जल रही हैं. अभी एमसीवी ट्रिप कर जाएगी तो लाइट जलेगी? नहीं जलेगी ना? दिस इज द एपिसेंटर, राइट? अगर हम मेंटली फिट नहीं हैं, इज इट पॉसिबल कि हमारे लाइफ डिसीजंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेशन, फोकस, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप्स, एडजस्टमेंट्स, मैंने कितने सारे नाम लिए ना यहाँ पे, कुछ भी पॉसिबल है हमारी लाइफ में बिना मेंटल हेल्थ के? स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स एंड विमेन, थोड़ा सा हमारा न्यूरोलॉजिकल वायरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेल्स. तो मुझे लगता है कि हमको अपने एंगल पे अपने बारे में कुछ चीज़ें अलग तरीके से बात करनी है, ठीक है? और अगर आज आप यहाँ से कुछ टेक अवे लेके जाओगे, जो कि मैं पूछूंगी बाय द एंड ऑफ द सेशन, सो आई थिंक योर लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज. ओके, ऑल्दो द टॉपिक वाज, हर साल हमारा थीम अलग होता है. इस साल का थीम वाज एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड कैटास्ट्रोफीज. तो अब इमरजेंसी तो कुछ भी हो सकती है, कैटास्ट्रोफीज भी हो सकते हैं, राइट? कोविड क्या था? अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस था. 2020 के बाद मेरे क्लिनिक में, ऑल्दो इट्स बिन 19 years आई हैव बिन इन दिस प्रोफेशन नाउ, लेकिन जो केसेस मेरे पास कोविड के बाद आए
वो बिल्कुल डिफरेंट केसेस आए जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उससे पहले सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस आते थे, ओसीडी के आते थे, लेकिन उसके बाद लोगों में इतनी सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन आया लोगों में दैट दे स्टार्टेड कमिंग आउट विद देयर क्वेरीज। अगर उनको कभी थॉट्स में भी क्लैरिटी नहीं लग रही थी, देन दे स्टार्टेड अप्रोचिंग अस। सो सबसे पहले तो ये समझो कि हम लड़कियां हैं, ठीक है, और मेंटल हेल्थ में आपको स्पेसिफिकली अपने आप में 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। योर इमोशनल हेल्थ, योर सोशल हेल्थ एंड फिजिकल तो रखना ही है डेफिनेटली। भाई हम रोज सुबह हाइजीन ब्रश करते हैं, वी बेथ राइट, वी ईट गुड फूड, जैसा कि मैम ने ऑलरेडी बताया आपको। लेकिन हम क्या मिस कर रहे हैं जो हमारी दिनचर्या में होना चाहिए, दैट इज हाउ डू वी फील। कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ डू वी फील एंड हाउ डू वी एक्ट। देयर इज ऑलवेज एन आंसर टू व्हाई डू आई बिहेव द वे आई बिहेव। हर इंसान का बिहेवियर अलग है, तो इस सवाल का जवाब तो हमारे पास होना चाहिए कि भाई हर इंसान अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आखिर ऐसी कौन सी मशीनरी है जो उस बिहेवियर के पीछे है ना। तो अगर मैं इस कॉरिडोर से आती और एक फ्राउन होता है यहाँ पे, बहुत गुस्से में होती, तो आप सब विस्पर कर रहे होते यार ये इतने गुस्से में क्यों है ना। Isn't it my behavior, the way I walk, the way I sat, the way I'm interacting with you? ये तो behavior है, कुछ तो मशीनरी चल रही होगी पीछे। The way I'm behaving, एकदम से तो नहीं behave करेंगे। That means I have to be aware about my thought process and emotions as well. तो हम सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच बॉक्स लेके आते हैं, फिर हम पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, राइट, बीइंग अ स्टूडेंट। एंड फैकल्टीज का सेम है, सुबह उठते हैं, घर का काम भी करते हैं, बिकॉज दीज आर सुपर वुमेन्स, घर का भी काम करते हैं, बच्चों को भी स्कूल भेजते हैं, फिर यहाँ आते हैं और पढ़ाते हैं। बट 2 मिनट के लिए भी क्या हम बैठ करके ये सोचते हैं कि आज मेरा मूड कैसा है, मैं क्या अभी फील कर रही हूँ। बिकॉज अलमीरा में जैसे शेल्फ्स होती है ना अलग अलग, कि बीच में कुछ और, ऊपर वाली शेल्फ पे कुछ और, नीचे सबसे एक्सेसिबल चीज़ें होती हैं जो जल्दी जल्दी निकाल लें, है ना। ऊपर जो कुछ कम काम आती है वो चीज़ें रखते हैं, है कि नहीं है। तो ये सोचो कि सुबह अगर आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स, मूड, इन चीज़ों का पता ही नहीं है तो आप पूरा दिन कैसे निकालोगे। तो ये हम मिस आउट करते हैं। अगेन, डू यू एवर थिंक बीइंग इन द प्रेजेंट, what are you thinking at the moment? क्योंकि हम अभी पे तो सोचते ही नहीं हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, अरे बाप रे 10 मिनट बाद ये मीटिंग है, ये लेक्चर है, ठीक है, और स्टूडेंट्स आज जाऊंगी तो पक्का उससे ही बात बोलूंगी, हाउ डेयर यू, कल उसने मुझे ऐसा बोला कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, आज तो पक्का बोलूंगी उसको। अग्री? तो हम प्रेजेंट में तो है ही नहीं। वेयर आर वी? Either we are dwelling in past or ruminating about future. Where is the present? तो हम खुश रहेंगे कैसे, राइट? तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है मेंटल हेल्थ का, वो ये है कि हमको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 10 मिनट अपने आप को देने हैं सुकून से, एंड रिफ्लेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट कि आज मेरा दिन कैसा गया, कौन से थॉट्स आर सर्विंग मी बेस्ट और कौन से थॉट्स विच आर नॉट सर्विंग मी बेस्ट, और फिर हम उसको फिल्टर करेंगे। भाई रोज़ डस्टबिन से आप कूड़ा बाहर देते हो ना, गाड़ी वाली आई जो भी कचरा निकाल, इसका कचरा कौन निकालेगा? निकालते हैं हम, पर कितना कचरा हम कलेक्ट करते हैं 24 घंटे में? हैव यू एवर रियलाइज्ड? पूरे दिन में कितना सारा डस्ट, कचरा, मम्मी घर घुसने से पहले बोलती है चप्पल बाहर, कीचड़ है, जूता बाहर उतारो, लेकिन वो जो यहाँ लेके आए हो उसको कौन साफ करेगा, डस्टिंग करेगा। सो 10 minutes every day, devote yourself. You know, I make a PPT always. Such a lousy person I am, I never follow the PPT.
फिर देन दिव्यानी वाज आस्किंग मी, मैम आप इसको पढ़ेंगी भी? सो दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर मी. I believe in interactive session, so keep on giving me answers. Are you with me? Yes. जो अभी तक बोला बहुत बेसिक है ना? Yes. समझ में आया? Yes. पर ऐसा होता है ना? Yes. Right. Can we have the next slide, please? Again. ये मैं बता चुकी हूँ. Next, please. Now, why women health is very important. So, अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो डेफिनेटली मेरा बच्चा भी सही नहीं रहेगा. मेरे फैमिली का पूरा एटमॉस्फेयर गड़बड़ा जाएगा. राइट? आप ठीक नहीं हो, आपका मूड खराब है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्राइसिस है या चैलेंजेस है जिसको आपने एड्रेस नहीं किया है, तो आपकी मम्मी भी ठीक नहीं रहेगी, या आपके पापा भी अच्छा फील नहीं करेंगे, आपके सिबलिंग्स अच्छा नहीं फील करेंगे, आपके फ्रेंड्स अच्छा नहीं फील करेंगे. दैट मीन्स कि हमको सबसे पहले खुद को ठीक रखना है. बिकॉज कैन यू सी द फर्स्ट पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस एंड केयर गिवर बर्नआउट. आई एम इंक्लूडिंग ऑल द फैकल्टीज हियर एज वेल, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज फॉर एवरीवन. ठीक है? तो इतना ज़्यादा हम हसल में हैं, इतना लाइफ हमारी तेज़ी से, आप देखो जब हम छोटे थे, मुझे लगता है जो भी यहाँ 45-40 के आसपास हैं, गो बैक इन टाइम, हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा रैट रेस नहीं था जो अब है. हम सिर्फ भाग रहे हैं. समटाइम्स वी रियलाइज कि हम सिर्फ भाग रहे हैं. तो मेंटल हेल्थ सेम कैसे रहेगी? इफ़ यू थिंक कि पुराने वाले ढर्रे पे अब भी हम चल जाएंगे तो नहीं चलेंगे. यू विल हैव टू इनकलकेट अ फ्यू स्किल्स in your life which is mandatory to be sane. नहीं तो हमें कई बार लगता है कि हम डिप्रेस हो रहे हैं. राइट? डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, डिप्रेशन हो गया है नहीं. अगेन देयर इज अ डिफरेंस. नेवर यूज दिस टर्म कि हमको डिप्रेशन हो गया है. नो, आई कैन फील डिप्रेसिव और मे बी आई कैन हैव डिप्रेसिव बाउट्स. हम सबको आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है डिप्रेशन हो गया. सो ये बर्नआउट तो हम सबके साथ होता है. बच्चे बेचारे पढ़ के एक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है. फिर प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, फिर हम मम्बल शुरू करते हैं, भाई एग्जाम थियरी खत्म नहीं हुआ, प्रैक्टिकल शुरू हुआ. क्यों लिखवाते हैं ये लोग इतना? दिस इज द मोनोलॉग, इजंट इट? दिस इज द इंटरनल मोनोलॉग. और हम सब करते हैं, हमने भी किया है ना? तो हमारा तो डेजर्टेशन 6 बार हमारी फैकल्टी ने यूं काट के फेंक दिया. हमने कहा भाई क्या है, एक बार में बताओ ना, क्या रोज चेंजेस करने हैं? लॉन्ग बैक है ना? ये मोनोलॉग है. बट ठीक है, वेंट आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? अगेन बॉडी इमेज, यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं? ट्रस्ट मी, लेट्स बी ऑनेस्ट, इस रूम में हम सब वी आर सेलिंग इन द सेम बोट. आपकी जो एज है, हम सबको हटा दो, जो यहाँ पे बच्चे हैं, ये बताओ हाउ मेनी ऑफ यू लव योरसेल्फ? कौन आँख बंद करके बोल सकता है मैं अपनी फेवरेट हूँ? या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी को लेके इतने कॉन्शियस हैं, एंड दिस इज मोर विद फीमेल्स. मेरे बाल छोटे हैं, मैं कितनी पतली हूँ, मैं कितनी मोटी हूँ, मैं कितनी सांवली हूँ, मैं कितनी गोरी हूँ. नोबडी इज हैप्पी. इमेजिन, मतलब जो हमारे पास है हम उसमें खुशी नहीं. पतले हैं तो दुखी हैं, मोटे हैं तो दुखी हैं. हाँ, सो अमेरिकन्स पे आई डोंट नो हाउ मेनी $to get this Asian skin, dusky skin. So nice of you. I'm such a fidgety person. मेरे लिए एक जगह खड़े होकर बोलना is a very difficult task. So मुझे अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के पास जाके बोलती हूँ. Is it better now? Yeah. तो अब मेरे को ये बताओ कि अमेरिकन्स को हमारी स्किन चाहिए, हमको अमेरिकन्स की स्किन चाहिए. करेक्ट? वो डॉलर्स खर्चा करते हैं, या फिर गोवा आप जाओगे कभी, आप में से जब कोई गया भी होगा, तो 3-3 महीने फॉरेनर्स आते हैं, वहाँ लेटे रहते हैं बीच पे. तो आप किसी से पूछोगे क्यों भाई, तो कहते हैं हमें तो डॉक्टर ने बोला है टैनिंग की ज़रूरत है. रियली? एंड देन इन इंडिया
कॉम्प्लेक्शन। और आप में से कितनी बच्चियां इस एज में इस एक कंसर्न को लेकर के सुबह उठती हैं, फिर फेयर एंड लवली का मार्केट बढ़ाती हैं और फिर शाम तक खुश हो जाती हैं, हाँ आज तो अच्छा दिख रहा है। करेक्ट? तो सोचो कितना मेंटल टोल है ये, साइकोलॉजिकल टोल है ये, कि हम दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के वैलिडेशंस के लिए जो भगवान ने हमें दिया है, हम उसी से इतना खुश हैं और फिर हम दुखी रहते हैं। मतलब हमसे कोई पूछे तो हम पूरा दिन कहते हैं भाई घर चलाना है, काम करना है, प्रोफेशन है, लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बच्चे सेटल हो जाएं। और अगर कोई इस एज में पूछता है सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि हम उपटन लगा के भी गोरे नहीं रहे। See, then it comes to self esteem. तो सेल्फ एस्टीम अगर मेरा लो है तो मैं कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगी। नो मैटर व्हाट आई हैव इन माय किटी, इन माय बकेट, आई कुड बी ब्लेस्ड विद एन नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स, पर मेरा ध्यान वहीं जाएगा जहां लोग मुझे कमेंट पास करेंगे, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वैलिडेशंस एंड अप्रूवल्स। है ना? जैसे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, कुछ करता है फिर मम्मी की आंख में देखता है, अरे अभी चपत पड़ेगी या मम्मी इज ओके, आंखों से अप्रूवल लेते हैं बच्चे। सिमिलरली एट दिस एज यू सीक अप्रूवल फ्रॉम योर पीयर ग्रुप, सराउंडिंग्स, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दिस सोशल मीडिया। उसके लाइक्स मेरे लाइक्स से ज़्यादा कैसे? हमारे टाइम में होता था उसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद कैसे। आज की डेट में उसके फ्रेंड लिस्ट में इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स, इतने फ्रेंड्स, फेसबुक पे इतने लाइक्स, एंड देन दिस लीड्स टू self esteem issues. Are you with me here? Yes. Right. Now coming to domestic stress and safety related anxiety. Definitely इस एज में भी अगर मैं अपने आप को बोलूं कि हमारी गाड़ी को कोई स्टॉप नहीं करता है, that would be wrong. I don't feel safe. कई बार होता है मुझे रात के 9 बजे घर आना होता है, 9:30 बजे आना होता है, I still don't feel safe. That's a concern. So it might lead to another additional baggage on my shoulder and might increase my stress. तो आपके लिए तो definitely मुझसे 10 times ज़्यादा होगा, isn't it? So घर के भी family dynamics also play a pivotal role. The kind of bond I'm sharing with my parents, the kind of bond I'm sharing with my siblings, peer group, my teachers, everything is very important at your age, right? तो घर का माहौल भी हमारी साइकोलॉजी, साइकी, थॉट प्रोसेस, ये सब डिफाइन करता है। जैसा कि मैम ने आपको अभी बताया ना कि आप बाहर चेंजेस नहीं ला सकते, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? कर सकते हो? बारिश बंद कर सकते हो क्या? क्या करते हो? सिंपल, छाता लेके निकलते हो। थोड़े ना आप वहाँ ये बोलने बैठ जाओगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आप बोलोगे कि बारिश हो रही है, आज तो एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, क्यों बारिश हुई? यू कांट डू दैट। व्हाट यू डू, यू कम अप विद अ सॉल्यूशन, है ना? प्रॉब्लम फोकस तो नहीं रहेंगे। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा है तो सराउंडिंग से बेटर है आप देखो, हाउ कैन आई बिकम मोर रेजिलिएंट, हाउ कैन आई बिकम more emotionally resilient to handle these things, because life is not a bed of roses. ना ही आपको बाहर जाकर के हर कोई अच्छा बोलेगा, तुम तो बहुत अच्छी हो. Nobody is going to say that, right? So you have to be resilient enough कि ठीक है. तो there are two types of things. हमको क्या inculcate करना है? One is कि भाई इंस्टेंट चाहिए हमको रिलीफ स्ट्रेस से या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से. वन कैन बी कामिंग मैकेनिज्म. तो आप काम डाउन में, जैसा मैम ने बताया कि आप डिस्ट्रैक्शन हेल्प्स, हॉबीज, रिलैक्सेशन, ये सब कामिंग टेक्निक्स हैं. लेकिन लॉन्गर रन के लिए हमको क्या इनकलकेट करना है? कोपिंग मैकेनिज्म. कोप अप कैसे करना है? वहाँ पे तो काम डाउन आप कितनी देर के लिए हो सकते हो, but then I have to learn how to cope up from each and every situation, and you have to thrive back, bounce back. बॉल देखा है कभी आपने?
उसको दीवार पे जोर से मारोगे तो क्या होगा? जितनी जोर से मारोगे क्या होगा? बस, तो यही कोपिंग मैकेनिज्म है, isn't it? तो हमको क्या बनना है? जिंदगी जितनी तेजी से थपेड़े मारेगी उतनी तेजी से, सिंपल, राइट? नाउ कमिंग टू पोस्टपार्टम मेंस्ट्रुअल एंड मेनोपॉजल मेंटल हेल्थ इश्यूज। देखो 50 प्लस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है हमारा, वो धीरे धीरे बंद होने के एक कगार पे होता है। तो उसमें बहुत सारे बॉडीली चेंजेस है भाई। एट दिस एज ईस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, इसीलिए गुस्सा भी बहुत आता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, है ना। कभी अचानक से बिना वजह बहुत खराब लगने लगता है, कभी बहुत खुश हो जाते हैं बिना वजह। ये हार्मोन्स हैं। और हमसे पूछिए, हमारे साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, बट ईस्ट्रोजन कम हो रहा है, राइट? सो व्हाट आर यू सपोज टू डू? अगर कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होगा तो 40 प्लस वाली फीमेल्स डिप्रेसिव फील करेंगी, एंशियस फील करेंगी, बर्नआउट फील करेंगी। और आपके एज में क्या हो रहा है? आप भी वही फील कर रहे हो, लेकिन ओवर स्टिमुलेटेड है दिमाग, ओवर स्टिमुलेशन। और उस पर से भी इंस्टा, सोशल मीडिया ने आपका ब्रेन पॉपकॉर्न ब्रेन बना दिया। देयर इज अ टर्म, हैव यू हर्ड व्हाट इज पॉपकॉर्न ब्रेन? जैसे पॉपकॉर्न भूल जाता है ना जब आप मक्के के दाने रखोगे, राइट? वैसे ही ओवर स्टिमुलेशन से आपका दिमाग पॉपकॉर्न ब्रेन बन रहा है। कैन एनीबडी टेल मी टुडे, इन टुडेज टाइम, व्हाट इज आवर अटेंशन स्पैन? कोई भी? 30 seconds, ओके। एनीबडी एल्स? कोशिश करो, जो भी आ रहा है दिमाग में। एनी फैकल्टी हियर? कुछ भी? 1 minute, ओके, गुड। 10 minutes, और कोई? 3 minutes, and you'll be amazed to know it is 8 to 10 seconds. Isn't it a disaster? हमारे क्लिनिक में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा पहला सवाल होता है, मैडम फ़ोन कितनी देर यूज़ करता है आपका बच्चा? हम फ़ोन तो बहुत यूज़ करता है। किसने दिया 10 साल के बच्चे को? हम ही ने दिया। तो फिर भाई जहर एक बूंद हो या एक बाल्टी हो, जहर तो जहर है। छोटे से बच्चे को 15 साल से पहले तो हम बोलते ही नहीं है। आई गेव फोन टू माई डॉटर व्हेन शी रीच्ड क्लास 11th। और ये होमवर्क कब से शुरू किया था आपको पता है? देन पेरेंट्स लुक फॉर इमीडिएट सोल्यूशन। ये 11वीं में फोन देने का होमवर्क शुरू किया था जब वो क्लास 1 में थी कि नहीं मिलेगा। तो ग्रिलिंग करते 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 रजिस्टर करते करते देन शी वाज इन अ एक्सेप्टिंग मोड। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, मम्मा तो नहीं देने वाली। सो वी हैव टू बी फर्म। आई एम नॉट सेइंग वी हैव टू बी रूड, अग्रेसिव बीइंग पेरेंट्स, बट वी हैव टू बी फर्म। नहीं देना है तो नहीं देना, राइट? ओके, another slide please. Now, okay, so एक स्लाइड पीछे। नींद तो नहीं आ रही है ना? पक्का? ना कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकाइट्री एंड साइकोथेरेपी? यस प्लीज। And the psychiatrist has a medical degree in which he is able to give prescriptions about medicines and all. And whereas on the other hand, psychologist is he only solves problems by talking and giving up solutions and all. He isn't able to prescribe medicine. Yes, very good. So, see, you have to understand why therapy is important. Okay? Therapy is not just for crisis. There is a myth
that whenever we are in crisis we should go for therapy. ऐसा नहीं है. Crisis में भाई we Indians are so tuned to look for help when we are in problem. Can't we prevent our problem? Prevention is better than cure, isn't it? So let's suppose I identified, as ma'am also said, कि जब आपका स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, मैंने हॉबीज़ भी करके देख ली, परस्यू कर ली, अब लगभग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक कुछ चीज़ें कंसिस्टेंट हैं, persistent हैं, कुछ रेड फ्लैग्स, इट सिंपली मीन्स आई नीड टू टॉक टू समवन. तो ये लाइन जो है ना, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, ये हर जगह लागू होता है. थेरेपी इज व्हाट वी ऑल आर हंग्री फॉर, व्हाट? टू टॉक. कोई तो सुन ले. हम में से कोई ऐसा है जिसको बात नहीं करनी है, कुछ बताना नहीं है? इसीलिए 2 जो एग्जाम्पल्स मैम ने दिए कि पहले वाले ने बोला कि मेरे को माइग्रेन है और दूसरे ने बोला भाई मेरे को तो 4 साल से हो रहा है. व्हाट आर वी डूइंग? क्योंकि हम भी बताने को तत्पर हैं, आतुर बैठे कि कोई सुन ले भाई हमारी भी, हमको भी 4 साल से माइग्रेन है. अगेन that means we are not sharing things with someone who can give us a non-judgmental ear. क्योंकि जज कर लेते हैं लोग कि भाई ये तो रोज अपनी समस्या सुनाने आ जाती हैं, isn't it? और घर वाले भी नहीं सुनते हैं. Irony is, घर वाले भी रोज बोलेंगे क्या रोज तुम वही रोना लेके खड़ी हो जाती हो. That means a therapist is a trained, patient, effective listener who can listen to you no matter what you have to discuss, the weirdest of your thoughts. You can just go and talk. As simple as that. उसके लिए मुझे डिप्रेशन होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए मुझे पैनिक अटैक्स होना ज़रूरी नहीं है. बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई थिंक आई शुड गो एंड टॉक टू समबडी. तो अब भाई दोस्त से भी आप बात करोगे तो उसका भी मेंटल लेवल, आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसका भी वही है. हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो मेंटल एज, बट स्टिल. और फिर कल को झगड़ा होगा तो वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? Then you'll become the talk of the town. तो आप एक तो बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान से बात करोगे, that comes under psychological first aid, जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो. ये कोई भी हो सकता है, आपकी कोई कज़न हो सकती है, आपकी मम्मा हो सकती हैं, आपकी कोई टीचर हो सकती हैं, और जो यहाँ फैकल्टीज़ हैं, एनीबडी whom you can trust. आपकी कोई कज़न हो सकती है, आपकी कोई कॉलीग हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है. टॉक, which is very very important. Talk. Okay? Then, can we have the next slide please? Yes. Picture. Yes. So, see, if you can look at it, what are the myths? Therapy is definitely not only for people with mental illnesses. Therapy is not only talking. एक और चीज़, हमारे पास जब केसेस आते हैं क्लिनिक में तो कई बार पेरेंट्स और लोग आते कहते हैं हमने इतनी काउंसलिंग करी है घर पे, कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंसलिंग? मुझे बताइए. डू यू थिंक वी टॉक व्हेन वी आर इन आवर चैम्बर? वी ओनली टॉक और डू वी सजेस्ट? कितने लोग हैं जो बोलते हैं सजेस्ट एंड कितने लोग हैं जो बोलते हैं टॉक? पहले सजेस्ट वाले हाथों में, पीछे वाले किसी एक कैटेगरी में तो होंगे. कितने लोग बोलते हैं सजेस्ट? दैट्स व्हाट वी डू व्हेन वी आर इन क्लिनिक. रेज योर हैंड. फिर से देखने दो मुझे. पहले हाथ उठाओ भाई. गुड. कितने लोग बोलते हैं वी टॉक? We do not do either. ना हम बात करते हैं ना हम सजेस्ट करते हैं. So, what's your favorite color, बच्चा?
ब्लैक कैसे हो सकता है? तुम्हारा फेवरेट कलर तो वाइट होना चाहिए, है ना? वाइट कितना खिला खिला कलर होता है, ऑस्पिशियस ओकेजन्स में भी पहन सकते हैं, है ना? काला पहन सकते हैं क्या पूजा में? This is what? Suggestion. Do you think I am allowed to give any suggestion to adults? Absolutely. So I say I never suggest. भाई मैं कोई motivational speaker थोड़ी हूँ कि मैं suggestion दूँ आपको. I am a psychologist. So I have to listen to you. I have to understand you. And then I have to cough up the answer from your consciousness. You know the answer. It's just that I'm working as a catalyst. That's what therapists and counselors do. As simple as that. ना ही बोलते हैं, क्योंकि सुनने में ही हमारा 45 minutes निकल जाता है. बोलने का तो मौका ही नहीं आता. Then one day my husband says, यार तुम कितना थक जाती होगी, सुबह 9:30 से शाम के 7 बजे तक काम करती हो तुम, कितना बोलना पड़ता होगा. I said नहीं, मुझे बोलना पड़ता ही नहीं है, और मैं थक जाती हूँ. I'm totally swamped and exhausted because I listen. तो वो यहाँ तक भर जाता है, राइट? यही है थेरेपी. एंड देर आर डेफिनेटली मोडालिटीज एंड टेक्निक्स. सो आप में से जब कोई भी थेरेपिस्ट बनना चाहेगा या काउंसलर बनना चाहेगा तो उनको वो मोडालिटीज सिखाई जाएंगी. फॉर योर अवेयरनेस आई विल गिव यू अ ब्रीफ कि CBT एक तरह की मोडालिटी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव थेरेपी, पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन, DBT, ऐसे बहुत सारी मोडालिटीज हैं. तो वो टेक्निक्स हम क्लाइंट टू क्लाइंट यूज करते हैं कि कहाँ पे किस टेक्निक की ज़रूरत है. ठीक है, समझ आ गया ना? थेरेपिस्ट नेवर गिव एडवाइस और जज यू कि भाई काला अच्छा नहीं है, सफ़ेद अच्छा है. वी नेवर गिव यू एडवाइस. काला भी उतना ही सुंदर है जितना वाइट सुंदर है. अग्री? देन therapy helps understand emotions and behaviors. We understand and we try to make you understand yourself. That's what therapy does. Builds awareness, resilience and coping mechanism. I've already discussed about it. Next slide please. Therapy हम सब normal लोगों के लिए है, क्योंकि अगर normal नहीं होगा तो उनके लिए हम therapist हैं ही नहीं. That is pathological. ये सब भी मैंने बता दिया. Let's move further. Again, move further. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. और आगे ओके. सो नो मैजिक फिक्सेस, नो इंस्टेंट फिक्सेस. कि कई बार हमारे पास लोग इसलिए भी आते हैं कि मैम एक ही सेशन में हो जाएगा ना. मतलब ट्रक पे आप 20 क्विंटल लेके आ जाओ और आप बोलो कि भाई 20 क्विंटल यहाँ लेके आ रहे हो ना, तो हमारे पास भी तो कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं that we'll fix it up within 40 minutes of one session. So that means it takes time. Okay? Then we are absolutely trained. We are non-judgmental, non-biased. We listen to you unconditionally. And definitely therapy is not for severe mental illnesses. उसके लिए साइकाइट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेंटल इलनेसेस बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होती हैं. कि अगर सिम्टम्स आज 2 पे हैं तो कल 4 हो जाएंगी, फिर 8, फिर 16, 32. आपको लगेगा 1 महीना लेट हो गया, तो वो 1 महीना कैन बिकम अ डिजास्टर. सो नेवर हेजिटेट बिफोर अप्रोचिंग अ साइकाइट्रिस्ट एज वेल. ओके, अनदर ओके. और आगे मैम ने ये बता ही दिया है कि कब आपको लगना चाहिए. अगर आपकी भूख में बदलाव है, आपके स्लीप पैटर्न्स में चेंजेस हैं, आपको बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो शायद आप पहले करते थे और अब वो चीज़ आपको इंटरेस्ट नहीं दे रही है, ब्रूडिंग है, बिना वजह रोना आ रहा है बार बार, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए आप थेरेपी के लिए जा सकते हो. Another slide please. Right. ये कुछ मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज हैं, आप चाहें तो फोटो ले लें. कि कई बार हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं.
और आगे इसमें हमने नंबर्स दिए हैं. Another slide please. Another slide. We've already discussed this. Another slide. Okay. So I think by the end of the PPT you will be getting those helplines. Now, one slide back please. What you can do every day. A quick tip. मैम ने बताया वो तो करना ही है, बट कोपिंग मैकेनिज्म के लिए क्या करना है? Every day can you all promise me to give me 10 minutes to yourself? इससे ज़्यादा मैं नहीं मांग रही आपसे. How many of you can promise me to give 10 minutes to yourself? ठीक है. First, every day reflect and start journaling. 5 मिनट अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं या आज मुझे इस थॉट ने बेहद परेशान किया, बॉदर किया, प्लीज उसको लिखो. यस. मैं हमेशा अभी सोने से पहले तो मेरे पास एक डायरी है, तो मैं हमेशा मतलब जो भी मैंने पूरे दिन में जो भी किया, जो भी मुझे चीज़ बुरी लगी या किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं वो लिख देती हूँ, तो वो थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है. सो सी यू नीड टू वेंटिलेट. भाई यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, सफोकेशन हो जाए, पंखे बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? दरवाजे खोल देंगे, खिड़कियाँ खोल देंगे. सो वन वे टू वेंटिलेट योर सेल्फ इज जर्नलिंग. और अगर स्पेसिफिकली नेगेटिव थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना है तो थॉट लॉ, इट विल हेल्प यू. ठीक है. नेक्स्ट इज limit comparisons and social media stress. ये it's a disaster. Do not compare yourself with anybody under the sun. तो सुबह उठ करके जब भी आप घर छोड़ते हो, कितने लोग ये बात बोलेंगे, मैं अपनी फेवरेट हूँ? प्रॉमिस? भाई हमको हिंदुस्तान में कॉम्प्लीमेंट देना सिखाया ही नहीं गया है. तो कोई मुझे बोलेगा मैम आपकी साड़ी, आपके बाल बड़े सुंदर हैं. अरे कहाँ, अब तो झड़ गए हैं, पहले बहुत अच्छे थे. तो ना तो कॉम्प्लीमेंट देना आता है ना लेना आता है. तो मेरे को कोई बोलता है ना मैम आपकी डॉटर कॉलेज जाने वाली है, आप तो लगती नहीं. मैं बोलती और क्या, आई एम एज यंग एज स्वीट, है ना? क्यों ना बोले भाई. तो अपनी तारीफ कौन करेगा? और एक चीज डिलीट कर दो, अपने मुंह में या मिट्ठू भरना सबसे गलत कहावत है, क्योंकि कोई नहीं आने वाला है 2025 में आपको आके बोलने की यार तुम कितनी बेहतरीन लड़की हो. बल्कि ये जरूर बोलने आएंगे कि ये क्या किया था, ये तुमने बिल्कुल गलत किया, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो. तो खुद ही ये बर्डन भी उठाना है. सो सेल्फ इक्विप्ड सिर्फ चीज़ों में नहीं होना है, सेल्फ अप्रिसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो 10 मिनट मांगे थे, 5 मिनट रात में हो गए, 2 मिनट सुबह हो गए, 7 मिनट हो गए, 3 मिनट बचे हैं हमारे पास. कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड. 3 मिनट में उसी डायरी में डेली सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है कि आज पूरे दिन के लिए व्हाट आई फील ग्रेटफुल फॉर. होता क्या है, ब्रेन को हमने ट्रेन कर दिया है, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ दिस, प्रमोशन नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही, नंबर नहीं बढ़ रहे, ब्ला ब्ला ब्ला. पर क्या अच्छा हुआ वो लिखते. छोटी से छोटी चीज, आज मम्मी ने हमारी फेवरेट डिश बनाई, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, है ना? आज मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड का कॉल आया, आई फेल्ट सुपर डुपर हैप्पी, सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड. छोटी चीजें नहीं लिख सकते हैं. वी प्रोक्रेस्टिनेट आवर हैप्पीनेस एज वेल. अपनी खुशी को भी हम टालते हैं. वो जब उसकी जॉब, बेटे की जॉब यहाँ लग जाएगी तब तो बहुत खुश हो जाएंगे, तब वैष्णो देवी जाएंगे. अरे आज ही चले जाओ, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दैट? सो वी प्रोक्रेस्टिनेट आवर हैप्पीनेस. 95% आएंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, एनिवर्सरी आएगी तो केक काटेंगे, बर्थडे आएगा तो केक काटेंगे. अरे आई एम सर्वाइविंग, व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? आई एम सीइंग अनदर डे. इजंट इट लेस देन अ मैजिक कि हर सुबह उठ के सांस ले रहे होते हैं? तो मेंटल हेल्थ बड़ी चीज़ों से नहीं बनती है, छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती हैं. ओके, सो 10 मिनट हो गए ना.
ये 10 मिनट आप सबको अपने आप को डेली देने हैं एंड ट्रस्ट मी यू विल नेवर एवर नीड अ थेरेपिस्ट, एटलीस्ट जब तक कोई बहुत मेजर क्राइसिस लाइफ में नहीं आएगी तब तक आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एंड आई वुड लाइक टू टर्मिनेट द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, बट ये आप बच्चियों के लिए हैं। तो मैंने आपके लिए ये निकाल के रखा था कि बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये आपके मन की बात है, इट्स योर मोनोलॉग। सुन लेना जब मैं कहूँ मेरा मन नहीं है, सुन लेना जब मैं कहूँ मेरा मन नहीं है, और मत कहना मुझसे तुमसे बेहतर तो मौसी की बेटी है। मत कहना मुझसे कि तुमसे बेहतर तो मौसी की बेटी है। सुन लेना जब किसी के मतलब की छोटी सी बात पे रो पड़ूं। सुन लेना जब किसी की बेमतलब सी छोटी सी बात पे रो पड़ूं। और मत कहना कि मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ। मत कहना कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। सुन लेना जब मैं कहूँ कुछ चीज़ें मुझे बहुत ट्रिगर करती हैं। सुन लेना जब मैं कहूँ कुछ चीज़ें मुझे बहुत ट्रिगर करती हैं। और मत कहना कि इन सब के लिए मेरी उम्र ही क्या है। कहते हैं ना पेरेंट्स कई बार, इतनी छोटी सी हो अभी से तुमको डिप्रेशन हो रहा है। कितने लोगों ने सुना ये स्टेटमेंट? एवरीबडी। मत कहना कि इन सब के लिए मेरी उम्र ही क्या है। सुन लेना जब मैं कुछ डिसीजंस अपने लिए सेल्फिशली ले लूं। सुन लेना जब मैं कुछ डिसीजंस अपने लिए सेल्फिशली ले लूं। मत कहना कि कभी हमारे बारे में सोचती हो। मत कहना कि कभी हमारे बारे में सोचती हो। ये दुनिया अपने आप में काफ़ी मुश्किलों से भरी है। ये दुनिया अपने आप में काफ़ी मुश्किलों से भरी है और इन सब में आपके सपोर्ट की कमी सबसे ज़्यादा चुभती है। इन सब में आपके सपोर्ट की कमी सबसे ज़्यादा चुभती है। अपने घर में तो मुझे कुछ भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अपने घर में तो मुझे कुछ भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। असली लड़ाई तो मेरी बाहर की दुनिया से होनी चाहिए। बहुत मुश्किल था आज आपसे ये सब कह पाना। बहुत मुश्किल था आज आपसे ये सब कह पाना, पर ये सुनने के बाद एक बार आकर हाल ज़रूर पूछ जाना। एक बार आकर हाल ज़रूर पूछ जाना। Thank you so very much for listening. God bless you all. You are wonderful, absolutely wonderful. Thank you so much. Thank you. Enlightening, engaging, and beautiful lecture. The poem was so heart-touching that I can definitely say I'm very sensitive. इतना प्यारी सी poem आपने सुनाई हमें. You spoke about being resilient and bouncing back from adversity. You highlighted the importance of sparing at least 10 minutes for ourselves in our daily lives. 10 minutes in which we can introspect, reflect, and pay gratitude to the wonderful things happening in our life. You also said that it is important to develop some calming strategies, think of distractions, develop hobbies, as well as learn adaptive coping strategies, which will aid in the long run. Most importantly, you highlighted the importance of sharing, of talking. चुप्पी तोड़ खुल के बोल. So, and you also suggested that psychologists and psychotherapists don't necessarily talk, they listen. So we also, when we are trying to assist someone, should be open to listening to their vows. So thank you so much, ma'am, for sparing your valuable time and for enriching our students with such beautiful wisdom. Thank you tremendously. That the psychology department held a quiz competition and poster making competition, and you can see the posters decorating.
a quiz competition with multiple rounds and a poster making competition. Please have a look at the beautiful posters our students have made. And I would like our principal ma'am and our guests to kindly to give certificates to our winners and motivate them. For this, I request Dr. Gaganpreet Kaur to kindly come up on the podium and assist in this segment. October, and there are some participants who have participated in the quiz and got some positions. First, Komal Kukreja. सामने Second is Amisha Singh. Third is Krishika. We have a consolation prize, that is Anamika Singh. Now the poster making competition we have held on 7th of October, and the winners, first prize goes to Nikita Dikshit. There are two winners, and second one is Dipali Yadav. सामने Dipali is also the first winner of the poster. Second prize goes to Anamika Singh and Jyoti Gupta. Jyoti Gupta. Third one is Laiba Farooq and Vanshika Srivastav. Laiba Farooq and Vanshika Srivastav. And consolation prize goes to Vansika Rastogi and Janvi Mishra. Vansika Rastogi and Janvi Mishra. Janvi. सामने प्लीज जैसा कि अभी जो आज का सिंपोजियम था, हमारे जो दो गेस्ट स्पीकर्स हैं नंदिनी जी और डॉक्टर नेहा आनंद, दोनों ही साइकोथेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी से हैं। और आज की जो व्यस्त जीवन है उसमें हम कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेसेस को फेस करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी साइकोसोमेटिक या साइकियाट्रिक या इस तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। आजकल के यूथ में भी डिप्रेशन और फिर उसके बाद यहाँ तक कि सुसाइडल बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो सुसाइडल स्टेप्स भी ले लेते हैं बच्चे। तो इन सारी चीज़ों को अगर टाइमली इन पर बात कर ली जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो हम उसको बचा सकते हैं, एक किसी की जान भी बच सकती है और जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं लोग उससे भी वो भी उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से कि डॉक्टर नेहा आनंद
और डॉक्टर नंदिनी शर्मा, दोनों लोगों ने सहमति दी हमारे कॉलेज में आज इस सिंपोजियम को करने की। और आप सभी बच्चों को, टीचर्स को, उन्होंने जो भी इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट्स हैं और इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू उन्होंने ये आपकी प्रॉब्लम्स को कुछ समझा होगा या आपने उससे कनेक्ट किया होगा अपनी बात को, और बहुत ही यूज़फुल रहा होगा लेक्चर। मेरी कुछ व्यस्तता थी, कुछ कागज़ जाने थे डीएम ऑफिस, तो मैं चली गई थी और मेरे बिहाफ पर प्रोफेसर ऋचा शुक्ला मैडम ने हेड किया। और मैं मिशन शक्ति की जो टीम है हेडेड बाय प्रोफेसर नीतू सिंह, प्रोफेसर सीमा पांडे, मनीषा, विमला, आप सभी को बधाई देती हूँ। और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की डॉक्टर सोनल अग्रवाल, डॉक्टर सुकन्या त्रिपाठी, डॉक्टर गगनप्रीत कौर और सुचिता लैब असिस्टेंट जो हैं, तो आप सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को, मिशन शक्ति टीम ने और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया है। और ये इन मुद्दों पर बात होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसा कि जब मैं थी तो नंदिनी बात कर रही थी कि हेल्थ क्या है, क्या वो सिर्फ डिजीज़ की एब्सेंस को हम हेल्थ कह देते हैं, या होलिस्टिक हेल्थ में जिसमें कि मेंटल फिजिकल हेल्थ भी आती है। एक स्टूडेंट ने भी कहा, जब पूछा गया कि फिजिकल हेल्थ क्या है, तो वो मेंटल हेल्थ से भी जोड़ने लगे। तो ये सच्चाई है कि आप किसी भी डॉक्टर में, यहाँ तक कि चाहे आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट में देखें, चाहे एलोपैथी में देखें, चाहे आयुर्वेदिक में देखें, सभी जगह होलिस्टिक ट्रीटमेंट चलता है। और सभी प्रॉब्लम्स की जड़ में कहीं ना कहीं जो है वो हमारी मेंटल प्रॉब्लम का मतलब पागलपन नहीं होता है। हमेशा मेंटल प्रॉब्लम जैसे जो स्ट्रेसेस हैं, टेंशन्स हैं, लाइफ में हम लोग ओवर लोडेड हैं वर्क से, ख़ास तौर पे महिलाएं, मिशन शक्ति की टीम जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बात करने की और ज़्यादा आवश्यकता बढ़ जाती है। क्योंकि महिलाएं, ख़ास तौर पे जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, आगे चलकर आप जब जॉब करना चाहेंगी तो उनके जो वर्कलोड है, उनका जो स्ट्रेस है, वो और लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी समय समय पर होती हैं, वो भी अलग होती हैं। जैसे आप एडोलेसेंट गर्ल्स अगर हैं, तो आप लाइफ में जब आपके पीरियड्स आते हैं तो उसके पहले या उसके दौरान या उसके बाद सभी में अलग अलग समय पर हो सकती चीज़ें, किसी न किसी प्रकार का ये मेंटल प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आते हैं। आपको बहुत एंग्जाइटी हो जाएगी, या फिर आप बहुत ही एकदम लो फील करेंगे, और फिजिकल कंडीशन तो थोड़ा बहुत आप 19-20 हो ही जाती है। इसी तरीके से जब आप मेनोपॉज की तरफ आ रहे होते हैं तो प्री मेनोपॉज स्टेज होती है, फिर मेनोपॉज की स्टेज होती है। तो प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज स्टेज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आज सुबह डॉक्टर नेहा आनंद से इस बात पर डिस्कशन चल रहा था कि फिजिकल चेंजेस कुछ होते होंगे, पर जो उसके साथ उससे ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। खास तौर पे इस समय महिलाओं को बहुत ही डिप्रेशन की फीलिंग होती है, क्योंकि जो एडोलेसेंट मतलब गर्ल्स होती हैं, जहाँ से उनको मातृत्व का भाव जागृत तो नहीं है। जब लड़कियां होती हैं उन्हें ये नहीं होता है कि हमें इससे माँ बनना है, तो उसके लिए गर्व की उनको अनुभूति होती होगी। पर जब बच्चे हो जाते हैं और माँ को ये लगता है कि हाँ ये भी एक वैल्यूएबल चीज़ थी, उनकी लाइफ का एक पार्ट थी, और जब वो जाने लगता है तो हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ उसके अंदर ही साइकोलॉजिकल फीलिंग भी आने लगती है कि शायद मैं पहले जितनी एफिशिएंट नहीं हूँ, या मेरे अंदर से कुछ जा रहा है, कुछ छूट रहा है। या अगर हम ब्यूटी की बात करें तो लोगों को लगता है कि अब मैं इतनी सुंदर नहीं लग पाऊंगी, या अपनी विमेननेस पे ही हमारा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि जो फीमेल फीलिंग है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमें लगने लगता है कि पता नहीं लोग हमसे उतना अट्रैक्ट होंगे कि नहीं। अब जो खुल के बात है वो यही है, हमें लगने लगता है कि पुरुषों की नज़रों में अब हम पता नहीं हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और घर में भी हमें वो स्टेज ऐसी होती है मेनोपॉज की कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं
तो हमको अगर वो अपनी लाइफ जी रहे हैं फिर भी हमें लगता है कि देखो हमने इन्हीं को पैदा किया था और ये हमको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो वाली फीलिंग भी आती है, उससे भी हमें डिप्रेशन होने लगता है। तो बहुत ये मेनोपॉजल स्टेज में या प्री मेनोपॉजल स्टेज में लो फीलिंग्स बार बार डेवलप होती हैं। बाकी तो फिजिकल होता है कि हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, ब्लड थोड़ा थिक होने लगता है नॉर्मली जब ब्लड लॉस हो रहा होता है उस समय के हिसाब से। तो मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल केयर प्रॉब्लम एक अलग है, पर मेंटल केयर उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल केयर ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें बहुत जितने मैंने आपको होम्योपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ये यूनानी या किसी भी प्रकार का आप दवा का ट्रीटमेंट तो लेते हो, पर साथ ही साथ आपको फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है। तो ये जो फेजेस होंगे लाइफ के और जो ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होंगे या फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, वो सारे हमारे इससे क्योर होने लगते हैं या हमें उनसे लड़ने की ताकत मिल जाती है और उनकी अकरेंस भी कम हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में नहीं जा पा रही है या हमारे ब्रेन तक नहीं जा पा रही है, उस वजह से भी हमारा माइंड उतना बढ़िया काम नहीं करता है। तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चों की आदत है कि वो देर से सो के उठते हैं, तो ये आदत डालिए कि जल्दी सो के उठिए, कुछ नहीं तो फ्रेश एयर में बैठ के प्राणायाम ही कर लीजिए या डीप ब्रीथ ही करिए। और ना अच्छी बात है कि अगर आप योग कर सकें और एक्सरसाइज कर सकें, मेडिटेशन कर सकें। आप देखिए कितने बड़े बड़े गुरुज हैं जिनका पूरा व्यापार इसी से चल रहा है, चाहे वो श्री हों, चाहे सदगुरु हों, बस वो आपको अपने मेडिटेशन सिखा कर क्या दे रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ सिखा रहे हैं आपको। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ आप वैसे भी अपने योगा प्रैक्टिसेस वगैरह के द्वारा कर सकते हैं। और आप करके देखिए कि आप जब प्राणायाम करते हैं और कुछ मेंटल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेस होती हैं, जब वो एक्सरसाइजेस करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेन योगा। जब आप ब्रेन योगा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड आप फील करते हैं। और हम सभी थोड़ा आलसी होते हैं, तो जब आप कर रहे होते हैं तो आपको उसका पॉजिटिव फील होता है। जब बंद कर दोगे तब आपको पता चलेगा हाँ ये कमी भी रह गई। तो मैं फिर से डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मिशन शक्ति टीम दोनों को बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए। हमारे दोनों स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बीच आए, क्योंकि आप उसकी एक्सपर्ट हैं, हम तो एक्सपर्ट नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं, हम तो इकोनॉमिस्ट हैं। तो इकोनॉमी खास तौर पे ज़्यादातर की प्रॉब्लम्स की जड़ में ही अर्थ है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे साइकोलॉजिकल समस्या हो, चाहे सोशोलॉजिकल समस्या हो या कल्चरल समस्या हो, सबके जड़ में जो है वो अर्थ ही होता है। आपके पास बहुत पैसा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, किसको कहाँ संजो, कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा के रखो, कहाँ से ईडी की नज़र से बच सको, वो भी एक समस्या है। और आपके पास पैसा अगर कम है, यानी अगर आप जो गरीब हैं, तो उनकी एक समस्या है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, जीविकोपार्जन कैसे करें। तो अर्थ बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए सबके बीच बैलेंस बनाकर हमको चलना है। इसीलिए भारतीय संस्कृति जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की बात करती है। खाली ये नहीं कहती कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, ना तो खाली ये कह रही है कि आप अर्थ के पीछे ही भागो और खाली कर्म ही करते रहो। मतलब हर चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, ऐसे कर्म करना जो धर्मानुकूल हो। तो जब हम अपनी संस्कृति सभ्यता को समझें, जानें, उसके अनुसार बिहेव करें। वर्ल्ड ने योगा प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज कर दिया है और हमारे यहाँ हमको रिकॉग्नाइज करने में झिझकते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स जैसे गीता है, गीता के थ्रू लाइफ स्किल्स सीखी जा सकती हैं। फॉरेन में इस पे रिसर्च हो रही, इंडिया में भी हो रही, पर वहाँ पर ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही, हमारे यहाँ पर कम मिल रही। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। आप बड़े बच्चे हैं तो आपको ये सब समझना और भी बहुत ज़रूरी है। मैं जितनी भी शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सभी स्टूडेंट्स का कि उन्होंने धैर्यपूर्वक इसको सुना। धन्यवाद। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा
They have even telemanus now mentioning telemanus में उसमें मैम इसमें ये है कि जो माइंड है वो सन है और जितने हमारे एक्सेस हैं ये प्लैनेट है, ठीक है, लाइक थेरेपी प्लैनेट, अवेयरनेस प्लैनेट, काउंसलिंग प्लैनेट, और जो मतलब ऑर्बिट है ये एक्सेस का है, क्योंकि हमारा जो टीम था वो यही था कि एक्सेस ऑफ मेंटल हेल्थ, और ये स्टार है